1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 5 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स, लेविटिकस 19 चैप्टर 20 चैप्टर 21 चैप्टर। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से 20 वचन और लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय 20 अध्याय 21 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन हम पढ़ेंगे, जो अध्याय हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा हमारी उन्नति होने दीजिए, हमें बदलाव आने दीजिए। जो रास्ते हमारे बंद पड़े हैं हम समझ नहीं पाए, जो गलतियां हम कर रहे हैं हमको समझ में आ जाए और उसमें सुधार लाने का अनुग्रह दे। जो पिता परमेश्वर हम अभी तक हमने करना चाहिए लेकिन हमने किया नहीं, ऐसी कोई बात है खुदा परमेश्वर हमसे अभी तक पिता परमेश्वर वो हमारे समझ आई नहीं हो, ऐसी कोई भी बात है खुदा, हम आपको पिता परमेश्वर विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो और वचन की गहरी दोस्ती में हमें उतार कर लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। मार्क 5 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स तक हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से और फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मार्क 5 चैप्टर 1 verse से introduction. Christ casteth out the legion of devils. Jairus sued for his daughter, the bloody issue healed, etc. And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. And when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, and cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. And he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding, and all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirits went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea, and they that fed the swine fled and told it in the city and in the country, and they went out to see what it was that was done. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil, and had the legion sitting and clothed, and in his right mind, and they were afraid. And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. And they began to pray him to depart out of their coasts. And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. Howbeit
Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय पहले वचन से 20 वचन तक हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। 5 अध्याय पहले वचन से। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्मा थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए और ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आइए। पिता परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह ने कहा, मैं दुष्ट आत्माओं को पवित्र आत्मा के परमेश्वर की उंगली पर पवित्र आत्मा के द्वारा निकालता हूँ। तो मेरे परमेश्वर पिता, हम और क्या पिता परमेश्वर दूसरा इस्तेमाल करना है? हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा ही सब कुछ है। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं, हमारा मन पिता परमेश्वर सृष्टि में नहीं, सृष्टिकर्ता में लगने के लिए सहायता कर, ताकि हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रबल होकर परमेश्वर के कामों को पूरा कर सके। पवित्र आत्मा, हमारी मदद करो। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।